नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महिला और इस समय मौजूदा करनाल में, जहां पर हम आपको बता दें कि जो फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार जो किसानों के समर्थन में टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि करनाल के रास्ते से होते हुए यहाँ पर जा रहे थे और आप देख सकते हैं कि बस में कई जाने माने कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो किसानों के समर्थन में, जो हर कोई किसानों के समर्थन में आता हुआ फ़िलहाल नज़र ज़रूर आ रहा है। और कुछ कलाकार भी हमारे साथ फ़िलहाल मौजूद हैं। जो मलकीत जी हैं हमारे साथ, वो और भी कुछ कलाकार हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। पंजाबी कलाकार मलकीत सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जो एक कलाकार के साथ एक किसान भी हैं। सर, क्या कहेंगे, आज किसानों के समर्थन में जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, पिछले 5 महीने, हिंदी बोलूँ पंजाबी बोलूँ, जो पिछले 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। तो ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਕੇ ਸਾਥ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ 40 ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਮਹਿਤਾਬ ਬਿਰਖੁਰੀ ਬੈਠੀ ਨੇ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ ਨੇ, ਸੁਨੀਤਾ ਤੀਰ ਮੈਡਮ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ, ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, नामवर लोग सारे ਜਿਹੜੇ जुड़ के आए हैं। ਅਸੀਂ इकट्ठे होकर समर्थन देने जा रहे हैं। सर, जो एक कलाकार है दीप सिद्धू जी, हालांकि आप 26 तारीख का मामला सबके सामने ही है, तो उनकी गिरफ्तारी हुई है करनाल से, कल उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, बात कोई नहीं, संघर्ष कर रहे हैं लोग, सभी लोग अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। ये 26 का जो मसला है, इसके बारे में ये है कि वो समा निकल गया, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 26 ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇ, ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। किसान नेताओं के द्वारा रैलियाँ शुरू हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं अब मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है किसान आंदोलन। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो ये हमारे साथ कलाकार मनजीत सिंह थे। और आप देख सकते हैं कि जो जितने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकार हैं, बस में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। करनाल से भी जो हमारे साथ एक कलाकार हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज आप सारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के जो कलाकार हैं उनके साथ समर्थन देने जा रहे हैं, टीकरी बॉर्डर जा रहे हैं, सिंगू बॉर्डर, कैसे देख रहे हैं किसान आंदोलन को? बिल्कुल जी, किसान आंदोलन अभी शिखर पे है और हमारी सारी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हम अपना योगदान डाल रहे हैं। पिछले 4 महीनों से आप देख रही हो, सारे कलाकार अपना अपना योगदान डाल रहे हैं और बहुत अच्छा भी महसूस होता है कि हम अपने काम छोड़ के अपने किसान भाइयों, क्योंकि हम खुद सारे एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और जितना हम योगदान पा सकते हैं हम अब भी डाल रहे हैं। और आने वाले समय में भी जब तक ये आंदोलन चलेगा हम उनके साथ खड़े हैं। तो और भी कुछ कलाकार हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का हर टाइम प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन जिस प्रकार से आंदोलन एक जन आंदोलन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जो पंजाबी कलाकार हैं जितने, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आप किसान आंदोलन में आज जा रहे हैं, सभी कलाकार हैं पंजाबी इंडस्ट्री से जुड़े हुए, कैसे अब किसान आंदोलन को आप देखते? सर, ऐसा है कि हम सारी इंडस्ट्री एज ए फैमिली किसानों को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, लीड वही करेंगे। सो हम उनको सपोर्ट के लिए जा रहे हैं कि हमारा अन्नदाता है, उसकी डिमांड्स जेन्युइन है। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है उनकी बातें मान के सारा कानून जो भी है वो खारिज कर दें। कुछ और कलाकार हमारे साथ। सर, कैसा है, आप आंदोलन में आज किसानों को समर्थन देने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, बात बनेगी अब आगे? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए हर चीज़ के लिए।
जिस तरह से अभी इस गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी नेगेटिविटी की, तो उस पर देखते हुए हम भी अपनी तरफ से, हमारी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, पूरे कलाकार तो उनको सपोर्ट करने के लिए निकले हैं किसानों को, तो ताकि वो ये महसूस ना करें कि वो अकेले, हम लोग भी साथ में हैं, क्योंकि हम खुद बेसिकली किसान हैं और किसानों के बेटे हैं तकरीबन। क्योंकि जिस तरह से काले कानून ज़बरदस्ती लागू किए जा रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम किसानों का साथ दें और ये कानून जो है किसी न किसी तरह से उनको ख़त्म करने में उनका साथ दें। तो सर कहीं ना कहीं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका अभी भी यही बयान है कि जो कानून है वो ठीक है, बातचीत से ही बात हल हो पाएगी। बातचीत के दौर कहीं ना कहीं अब बंद होते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय निकल चुका है, बातचीत नहीं। ठीक है, उनकी नज़र में कानून ठीक है, लेकिन देखिए कानून किसान के ख़िलाफ़ है और वो बोल रहे हैं कि इनके हक़ में है। तो एक आदमी, दो आदमी ऐसे तो होने चाहिए कि तो ठीक है, ये पूरे लाखों जो किसान हैं उनको खुद महसूस हुआ है और एक हद तक और बहुत अरसे बाद, जैसे जैसे ये देर होती जा रही है, ये टाइम गुजरता जा रहा है, हर बच्चा, हर शहरी, हर गांव वाला ये समझ रहा है कि वाकई ये जो कानून ज़बरदस्ती लादे जा रहे हैं ये गलत हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कलाकारों का कहना है कि जो किसानी से वो जुड़े हुए हैं, और कुछ और भी कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक ही बस में है और आज पहुंच रहे हैं सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कैसे लग रहा है कि बात बनेगी अभी किसान? देखिए, आपने कहा कि सारी फिल्म इंडस्ट्री एक ही बस में है, तो हम तो वो कर सकते हैं जो हमारे बस में है। अब जो सरकार के बस में है वो सरकार को करना चाहिए, और पिछले कितने महीनों से आप देख रहे हैं कि ये जो किसान है अपनी जान, मैं कहूँगा, हथेली पे लेके इतनी सर्दी में और इतने ख़राब मौसम में बैठा हुआ है, और उसमें कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं वहाँ पे, लेकिन सरकार पे फिर भी इस चीज़ का असर नहीं हो रहा है। इस चीज़ का बहुत अफसोस है, लेकिन हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी सरकार अपने आवाम की आवाज़ को सुने, किसानों की आवाज़ को सुने, और समय की नज़ाकत ये कहती है कि अब इस आंदोलन को ख़त्म करना सिर्फ सरकार के हाथ में है। किसान तो एक निश्चय करके आया है, उसको जो अपनी ज़िंदगी में लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में जो उसका आने वाली नस्लों का नुकसान होने जा रहा है, तो वो तो यहाँ पे मरने मिटने के लिए आया हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि जो 70% आबादी देश की किसान है, अगर किसान इस फैसले से खुश नहीं, कानूनों से खुश नहीं है, तो क्यों बनाए जा रहे हैं ये कानून? इनको रिपील करना चाहिए और जल्दी किसान को उसके वापस गांव, उसके घर भेजना चाहिए। तो ये पंजाबी कलाकार हैं जितने, उन सबका यही कहना है कि क्योंकि जो कृषि कानून बनाए गए हैं वो गलत हैं, और जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और लगातार सभी इनकी मांगों को लिए आगे आते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कुछ और कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप किसान आंदोलन को, और आज समर्थन देने के लिए जा रहे हैं? किसान आंदोलन तो पिछले 6-7 महीने से हो रहा है। बात की बड़ी खुशी है, मुझे गर्व है कि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ज़िंदगी में दो ही रास्ते होते हैं, खुदा का, एक शैतान का। हम लोगों ने खुदा का रास्ता ढूंढ रखा है, और जब खुदा का रास्ता आप ढूंढते हो तो जीत अवश्य होती है। थैंक यू। तो ये हमारे साथ जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार हैं, और साफ तौर पर जो किसान आंदोलन है कहीं ना कहीं अब जन आंदोलन ज़रूर बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार जो सभी वर्ग से जो समर्थन किसानों को मिलता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। और जो आप देख सकते हैं कि जो बस में जितने भी व्यक्ति यहाँ पर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकार हमारे साथ मौजूद थे, कुछ से हमने बातचीत की, और सभी के एक ही व्यू थे कि वो जो किसानों को समर्थन करते हैं, क्योंकि किसान पिछले काफ़ी लंबे समय से अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और सभी उनको अपना जो समर्थन देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ और जो कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज किसानों को समर्थन देने जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, सारे जने मिट्टी नाल मिले हुए हैं जी। सारे जने ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ, ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। क्या कहना चाहेंगे सर?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਗਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। तो जी बिल्कुल सही बात की, जिनके पास अगर ज़मीन नहीं है लेकिन ज़मीर ज़रूर है और उसी को लेकर वो समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप जा रहे हैं आंदोलन में? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। जी सर, आप क्या बताना चाहेंगे, आज आप जा रहे हैं समर्थन में? आज नहीं जा रहे, हम शुरू से ही इस संघर्ष के साथ हैं और अपने परिवार में जा रहे हैं। किसान आंदोलन का सहयोग नहीं, अपनों का सहयोग देने जा रहे हैं। सब हमारे वहाँ पे बैठे हैं, तो हम भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, मजदूर किसान हैं हम भी, तो हम सब शुरू से उनके साथ हैं। जी सर, आप क्या कहना बताना चाहेंगे? ਬਸ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। तो ये एक पंजाबी कलाकार थे, कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी सीधी सी बात है कि हम सभी पहले तो किसान के बेटे हैं। जो ये तीनों काले कानून यूनियन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इसके खिलाफ हम शुरू से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आज सभी टोटलिटी में हम कलाकार सारे इकट्ठे होकर दोनों बॉर्डर्स पर जा रहे हैं। लोगों को उनके साथ खड़ने का एक हमें बहुत अच्छा मौका जो है आज मिला है कि हम सभी उन किसानों के साथ पूरा मोढे से मोढा डालकर खड़ेंगे। तो ये जो कानून है, सरकारें लोगों की भलाई के लिए कानून बनाती हैं कि लोगों को क्रश करने के लिए बनाती हैं। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि देश की हुकूमत पर जो बीजेपी राज कर रही है, तो वो मान भी लिया है उसने कि हमारे से गलती हो गई है, हम सौदे करने के लिए तैयार हैं। जब उस आप समझते हैं कि उसमें हम शोध कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि कानूनों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो आप रिपील कर दीजिए, रिपील करने के बाद एक कमेटी बना लीजिए, उसमें हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के जो लीडर्स हैं उनको ले लीजिए और जो खेती के बहुत अच्छे लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन सभी को सरकार के नुमाइंदे और दोबारा ड्राफ्ट कर लें। ये क्या प्रॉब्लम है सरकार को? सिर्फ उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि अगर हमने ये रिपील कर दिए तो जो 370 वाले हैं, जहाँ CAA वाले हैं, जहाँ और जो हमने काले कानून बनाए हैं, वो लोग ना हमारे खिलाफ लामबंद हो जाएं। इस बात से वो डरते हैं। तो हम किसान के बेटे हैं, हमारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं। हम तो एक जागती ज़मीर के लोग हैं। हम अपने हकों के लिए, हकूक़ों के लिए लड़ रहे हैं और देश को जगा रहे हैं। देश को बोल रहे हैं कि जो MSP का है वो सारे देश में होनी चाहिए, जो केवल हरियाणा और पंजाब के लिए नहीं होनी चाहिए, सारे देश के लिए होनी चाहिए। तो वो हमारी लड़ाई है। तो हम इस लड़ाई में जंग जीतेंगे, डेफिनेटली जीतेंगे, क्योंकि हमारी किसान जथेबंदियों के लीडर जो हमें टाइम टू टाइम बताते हैं कि ऐसा करना है, अब बंद करना है, सड़कें रोकनी है, तो हम उनकी अपील पर काम करते हैं, तो करेंगे भी। क्योंकि ये बहुत सीधी बात है कि डेमोक्रेसी में और क्या रास्ता क्या है। हम पीसफुल जो है ये स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई इसमें वायलेंस नहीं है, कोई हमारे पास किसी किस्म का कोई आर्मिनेशन नहीं है। तो हम भी ऐसी देश के नागरिक हैं। हम अपने जो इंडियन फ्लैग है उसको इनसे ज़्यादा, बीजेपी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इनके तो जितने ऑफिस बने हुए हैं, इनकी RSS के किसी पर भी देश का फ्लैग नहीं। हमारे तो जवान, हमारे हरियाणा के, हमारे पंजाब के, राजस्थान के, यूपी के, हमारे किसान के बेटे बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं और हमारे ही बुजुर्ग, हमारे ही बड़ा जहाँ इस बॉर्डर पर देश की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कहाँ की इंसाफ़ी है? तो ये सरकार सिर्फ अपनी जिद के ऊपर अड़ी हुई है, तो इनको जिद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये वोटों की राजनीति है। जहाँ पर जिद तो इंदिरा गांधी ने भी की थी,
1975 में जब इमरजेंसी लगाई थी, मैं ड्यूरिंग दैट पीरियड आई वाज द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। हमें भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया था कि आप बोलते हैं जी, हम बोले नहीं और क्या करें। जिद छोड़नी चाहिए, जिद। हाँ, उनको जिद छोड़नी चाहिए। तो जो कलाकार है उनका कहना है कि जो सरकार को जिद छोड़नी चाहिए और किसानों की मांगे माननी चाहिए। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कृति किसान कलाकार एकता जिंदाबाद। हम यही कहेंगे कि जो सरकार जिद करके बैठी है तो अपनी जिद छोड़े, ताकि हमारे किसानों को हमारा हक मिले, इसका इंसाफ मिले। तो हम वहाँ से यही दुआ करेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी इससे राहत मिले। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी कलाकार हैं उन सबसे हमने बातचीत की और सबका एक ही कहना है कि जो जिद है उसको ज़रूर छोड़ा जाए। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि जो आप देख सकते हैं जो बस है उसमें सभी जो कलाकार हैं, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो कलाकार हैं, और आप देख सकते हैं जो जितने भी कलाकार यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबकी अधिकतर राय यही है कि जो अपना समर्थन देने पहुँच रहे हैं। और उनका कहना है कि जो काले कानून जो बनाए गए हैं, जो कृषि कानून आया, उन पर जो कहीं ना कहीं उन्हें जो रोक ज़रूर लगनी चाहिए और उनको स्थगित ज़रूर करना चाहिए। लगातार जो यही अपील करने के लिए और उनका समर्थन के लिए जितने भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार हैं वो जो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर आज इकट्ठे होकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ और कलाकार उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मैम, क्या कहेंगे? आज आप किसानों के समर्थन में पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज एक बस के अंदर जाती हुई नजर आ रही, कैसे देखते हैं आप किसानों में? तो नमस्कार आप सबको। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम एक साथ चलें, एक आवाज़ बने और अपने किसानों की आवाज़ बने। सो ये ज़रूरी भी है इस समय पर, क्योंकि इतने महीनों से किसान जो वहाँ पे बैठा हुआ है, पहले पंजाब में थे, हरियाणा से लेके ये आंदोलन पूरा वर्ल्ड का आंदोलन बन चुका है। सो ये जो आवाज़ है किसानों की, ये हम सब की आवाज़ है। हम चाहते हैं काले कानून जो हैं वो रद्द हो और किसानों को उनका हमारा हक मिले, ताकि वो भी अपने घर जाकर अपने आराम से अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। सो जितनी जल्दी हो सके हमारी यही अपील है सरकार से कि मांगे मान ली जाएं और इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। जी मैम, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ बॉलीवुड स्टार्स ने जो 2-4 ट्वीट्स किए हैं, उनके 2-4 ट्वीट्स से हमारा जो किसानी आंदोलन है वो आहत नहीं होगा। हम पंजाब के जो जितने भी आर्टिस्ट हैं आज बस भर के सब लोग हम किसानों की सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब कलाकार ये किसान की लड़ाई है, ये इंसानियत की लड़ाई है, ये रोटी की लड़ाई है, ये वो लड़ाई है जो हर आम आदमी की लड़ाई है। इसमें कोई किसी का कोई भी अपना हुक्म या तानाशाही नहीं कर सकता है और ये जो सृष्टि है, जो पूरा ब्रह्मांड है, ये सबका समान है, सबका साझा है। सो हम बस इसी चीज़ को लेके चले हैं कि जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसके लिए हमारा लड़ना हक है और हम इस सब सृष्टि का हिस्सा हैं और हम अपने हकों के लिए लड़ेंगे और वही लड़ रहे हैं। तो कुछ और भी कलाकार हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप क्या बताना चाहेंगे? आज किसानों के समर्थन में सभी कलाकार इकट्ठे होकर जा रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं? हम किसानों से बचपन से जुड़े हुए हैं। हम जो समझते हैं कि जो ज़मीन है ये हमारी माँ है। जो सरकार ने जो काले कानून बनाए हैं, अगर किसानों को लगता है कि हमारे हक में नहीं है तो सरकार ज़बरदस्ती क्यों करे? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र राज है। सरकार को चाहिए किसानों की बात मान ले और किसान वापस चले जाए। पर अगर किसान जिद करती है तो किसान भी तो संघर्षी है। जब उनकी माँ को खींचा जा रहा है, सीना जा रहा है, तो उसको क्या है, वो बैठे हैं शांतमय तरीके से बैठे हैं, कोई बगावत नहीं कर रहे, ऐसे तरीके की गड़बड़ नहीं कर रहे। हम ही सभी आर्टिस्ट यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो सरकार है ये कानून वापस ले और किसानों को समर्थन दे। जी, आप क्या बताना चाहेंगे? जो किसान आंदोलन चल रहा है और आप जा रहे हैं समर्थन? हम जा रहे हैं समर्थन के लिए। हमारे बहन भाई बुजुर्ग माँ बाप बहन बैठे हुए हैं। अब आज 76वां दिन है। घर से 1 मिनट के लिए भूल जाता है तो घर में वापस आना पड़ता है। सब इंतज़ार करते हैं। सरकार को चाहिए कि ये जो काले कानून हैं इनको वापस ले लें। पहले ये बताइए कि एक दस्तखत करने हैं और तो कुछ नहीं करना, चाहे सारी लोगों को बिठा के एक बार इनको खुश तो कर दें। बच्चे रो रहे हैं और माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये सबसे बड़ी बात है। ये काले कानून है जिसमें क्यों अन्नदाता है, जो मर्जी कही जाए कि ये है वो है, अन्नदाता है। आप हमें देखो, हम क्या हैं? हम कोई अत्तवादी हैं या खालिस्तानी या कोई और है?
हम कुछ भी नहीं, हम तो सिर्फ अपने किसानों को हौसला अफजाई देने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उनके पीछे खड़े हैं। और जो कोई भी बात होगी तो हम उनके साथ हैं। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास। मैम, आप क्या बताना चाहेंगे? आज आप आंदोलन में जा रहे हैं, सभी कलाकार आपके साथ हैं। देखो कहਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਥੋਪਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਹਨਾ, ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੈਮ, ਆਪ ਕੀ ਬਤਾਈਏ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਮ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਏਕਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਥਾਪਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਦੇਖੀਏ ਤਦ ਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੇਖੀਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ अपने घर वापस आ जाना, कोई लड़ाई बाकी नहीं रहो। तो ये आप देख सकते हैं कि जो जितने भी कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, आप बस में देख सकते हैं कि जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लगभग 40 से अधिक जो कलाकार हैं वो आज सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर अपना समर्थन देने जाते हुए नज़र जरूर आ रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कृषि कानून बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसान उनको लेकर अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। तो काफ़ी लंबा समय भी उन्हें हो चुका, वहाँ पर बुजुर्ग महिलाएँ वहाँ पर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं और एक घर को अपने छोड़कर वहाँ पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सभी का एक समर्थन जो कलाकारों का, जो किसानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। करनाल से विकास महिला, पंजाब केसरी टीवी करनाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, मैं हूँ आपके साथ विकास महिला और इस समय मौजूदा करनाल में, जहाँ पर हम आपको बता दें कि जो फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार जो किसानों के समर्थन में टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि करनाल के रास्ते से होते हुए यहाँ पर जा रहे थे और आप देख सकते हैं कि बस में कई जाने माने कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो किसानों के समर्थन में, जो हर कोई किसानों के समर्थन में आता हुआ फ़िलहाल नज़र ज़रूर आ रहा है। और कुछ कलाकार भी हमारे साथ फ़िलहाल मौजूद हैं, जो मलकीत जी हैं हमारे साथ, और भी कुछ कलाकार हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। पंजाबी कलाकार मलकीत सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे